Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu, and you are watching San Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है How Africans See Made in China versus India Things. Let's suppose ये चीज है चाइना की, ठीक है, ये रिमोट है चाइना का है, ठीक है, इसको देखकर अगर एक ये वाटर बॉटल, ठीक है, ये देख लेते हैं, ये मेड इन इंडिया है, ये मेड इन चाइना है, तो आपका ये चाइना की चीज सोचकर पहले माइंड के अंदर जो है वो क्या चीज आती है, आप लोगों ने जरूर कमेंट में बताना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई चाइना की चीज हो तो फर्स्ट मेरे माइंड में यही चीज आती है, फेक, इसलिए शाम तक जो है ना वो खराब हो जाना है, ठीक है, तो ये चीज माइंड के अंदर आती है। तो आप लोगों के माइंड में क्या आता है वो भी जरूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, और इंडियन चीजें का सोचकर मेरे दिमाग के अंदर क्या आता है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी मैं आप लोगों को। हम देखते हैं कि अफ्रीका वालों के दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर क्या आता है जब वो मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना चीजें देखते हैं। तो बड़े वैसे वीडियो के अंदर चलते हैं, तो हमारी वीडियो स्टार्ट होती है नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से। As a Congolese, every time I read Made in China, my mind tells me this is fake. And when I see Made in India, it tells me this is original. Same. But it's not only me. I think this have been so rampant everywhere that if I take the case of Africa, beauty or makeup product, hair product or medical product, as soon as it's shown Made in India, they trust it much more. But is this really true? So I use a bunch of Indian product. For example, this mouse by an Indian company, this keyboard, this alarm, these headphones, this watch, this note, the pen, literally everything around me which I use now is made in India. And to be honest, I'm quite satisfied with the quality at the price at which I get it. But then how does that happen? How does it happen that Indians can make affordable stuff, but when Chinese make something affordable, it ends up being lower quality? Just look at this. China make good products also, which they end up selling parts to the US or any other country, which means they also know how to make good products. But when they make affordable product, the idea is this is going to be sold outside to people who cannot afford high quality things, and that makes that you have to make low quality things because they will be okay with them since they just need something for now. Yet on the other hand, Indians, when they make affordable stuff, they do not make them to sell them outside, they still make them for Indians in India, and that makes that they will make that affordable thing to gain another client, so they can't fool him by a low quality thing because they know he will go away. So they have to give you something affordable, yet try as best as possible to give it to you on a good quality. That gap makes that made in India definitely will be made in India because they're going to sell it to an Indian who needs assurance that I have to rely on this brand to buy from there next time. But when it's made in China, I probably don't even know the brand. I barely check brands of stuff which I buy from China. I just need the product, and the next thing which I know is probably it might not sustain to live for longer, so I will need to buy another one in the next 3 or 6 months, and that destroys the idea. But there is a possibility of buying a high quality also in China. Yet what interests me here is how Indians managed to go with the idea of making affordable things which can still be of good quality. And I've said about this in my other videos about how Indians literally captured the market of bikes of Africa by doing the same. They make affordable bikes but which are really strong, and they won the entire market of bikes in Africa. The same way they did with medicines. In the whole world today, India is the only plug when it comes to affordable medicine, because you are sure you will get good medicines on an affordable price, which somehow will give you again the same expectations you had on a very expensive medicine. And that's a very intelligent strategy which Indians use. And I think to me that makes India to be a much more reliable partner for Africa. Yet to be honest, China have saved a lot who couldn't afford very expensive products. Anyways, thanks so much for being here. Catch you next time. ओके गाइस, वीडियो तो काफी इन्फॉर्मेटिव थी। ना ही सिर्फ पाकिस्तान के और दूसरी कंट्रीज के लोग चाइना और इंडिया की चीजों को देख के सोचते हैं अगर मैं भी इंडिया की चीज होगी, चाइना की चीज होगी, इंडिया की चीज देख के जो है वो ओरिजिनल चीज का एक माइंड के अंदर आता है, यार ये ओरिजिनल होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, बिकॉज इंडिया के अंदर क्वालिटी को जो है वो ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। चाइना के अंदर वही बात जो इन्होंने की वीडियो के अंदर कि भाई अगर अफोर्डेबल चीज बनानी है, कम प्राइस के अंदर बनानी है, तो चाइना को भी पता है कि ये उस कंट्री के अंदर जा रही है जहां
पर जो है वो कम प्राइस के अंदर ये चीज बिकेगी तो फिर उसका लेवल या उसकी क्वालिटी थोड़ी कम कर दी जाती है, तो बहुत ही कम कर दी जाती है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये चीज तो यूएस से जा रही है, इसके ऊपर पैसा भी ज्यादा स्पेंड हो रहा है, हम लोग भी ज्यादा अच्छे से क्वालिटी बेहतर करके इसको भेजेंगे। ये नहीं कि चाइना के अंदर चीजें क्वालिटी वाली होती नहीं, होती हैं, ठीक है, चाइना के अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें होती है। चाइना जो यूएसए को चीजें भेजता है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है पैसों का। जब ज्यादा पैसा खर्चेंगे तो ज्यादा अच्छी चीजें आएंगी, लेकिन जब कम पैसा खर्चेंगे और कॉपी चीजें लेंगे, जैसे कि आईफोन की कॉपी भी जो है वो चाइना वालों ने बहुत अच्छे से बनाई हुई है, कोई बता भी नहीं सकता सही तरीके से कि ये कॉपी है या वैसे है, अनटिल अनलेस आप उसकी सेटिंग्स के अंदर जाके ना देख ले, तो वो बात एक अलग होती है। लेकिन बहुत कम लोगों को जो है वो चाइना की और जो बनाई हुई चीजें होती है, फेक चीजें या कॉपी चीजें होती है, पता चल जाता है। बहुत जो प्रो बंदे होते हैं उनको तो पता चल जाता है, जिन्होंने ओरिजिनल चीजें भी यूज की होती है ना, तो उनको तो पता चल जाता है कि ये चाइना की, ये फेक है, ये नकली है। लेकिन जो लोग नहीं यूज कर पाते उनको अक्सर लोग गिफ्ट भी जो है ना वो फिर ऐसे चेप देते हैं कि यार मैंने तो तुम्हें एप्पल का आईफोन लेके दिया बेबी, ठीक है, लेकिन वो बाद में चाइना का निकलता है। वो बहुत कम पैसों के अंदर चीजें आप लोगों को मिल जाती है, क्वालिटी के ऊपर जो है। लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे उनके हेयर ऑयल, मैंने लास्ट काफी टाइम पहले मैंने उनका हेयर ऑयल यूज किया था, अभी तो ट्रेड बंद है, मैं आज से काफी टाइम पहले की बात कर रही हूँ। तो उनका हेयर ऑयल बहुत कमाल का था, बहुत अच्छा हेयर ऑयल था उनका। मैं बहुत लाइक आज से कोई 7-8 साल पहले, 10 साल पहले की बात कर लो, मैंने तब का उनका हेयर ऑयल यूज किया था। मुझे अभी भी याद है, मेरे बाल ना झड़ना शुरू हो गए थे, मैं बहुत छोटी थी तब ना, मेरे बाल झड़ना शुरू से हो गए थे। मैंने तब इंडियन हेयर ऑयल लगाया था, एक सिख भाई थे, उनकी दुकान थी, तो उनकी दुकान से मैंने परचेज किया था। बहुत अच्छा हेयर ऑयल था और वो मेड इन इंडिया था। और अभी तो प्रोडक्ट्स मुझे पता है फेक आती है, बिकॉज उसके बाद मैंने वही सेम हेयर ऑयल यूज किया, लेकिन उसकी क्वालिटी वैसी नहीं थी, उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं था। तो इंडिया की अगर चीजें है ना, उनकी जो स्किन प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती है, वो भी बहुत कमाल की होती है। आप लोगों को पता है कि बाहर के ममालिक के अंदर भी, यूएसए के अंदर स्पेशली जो है वो इंडियन चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट किया जाता है, ज्यादा समझा जाता है, भाई इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, उनकी स्टडी की भी क्वालिटी को समझा जाता है। बट पाकिस्तानी चीजों को, चाइना की चीजों को, अगर वो लो प्राइस के अंदर है तो कोई भी उसको जो है वो हाथ भी नहीं लगाएगा। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोगों ने भी अपनी रेकमेंड में जरूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।